बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय आज इस शाम की इतनी जो बहुत ही गज़ब की बातचीत होने वाली है उसके लिए आपने निकाला. We were very excited to have with us this guest from a very long time. Many thanks. May I request Jairoop ji and Ashok ji to kindly take their places. A huge round of applause. की जो श्रृंखला है, this series is dedicated to individuals, people who are born in Rajasthan and who've made a name for them nationally, internationally, globally. बहुत बहुत धन्यवाद जयरूप जी कि आप आज यहाँ पधारे. इस सीरीज़ को प्रेजेंट किया है श्री सीमेंट्स और इसके हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है ITC राजपुताना. May I request Mr. Rishi Mattu, the General Manager of ITC Rajputana, to kindly address the august Cadians. Thank you for being here. It's good to see that such lovely speakers over here and the way that this entire forum is orchestrated. I'm always glad to be a part of this place. So thank you and enjoy. ITC Rajputana is partnering in this initiative and ITC Rajputana में हम यहाँ पर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और बहुत सपोर्ट मिलता है हमें ITC राजपुताना से. जयरूप जीवन जी, आप सब इनको जानते हैं, आप सब ने इनके बारे में सुना है. He is a renowned director, writer, actor. He did his post-graduation in dramatics from the National School of Drama. He pursued Special Film Appreciation course by the Film and Television Institute of India, Pune, and learned practical filmmaking with internationally famed film director Shri Shekhar Kapoor Sahab. He has 50 years of experience in the field of theatre, radio, television, and films, though he looks very young himself. He has worked with some of the most famous and vibrant theatre and film personalities, namely V.V. Karansa, Vijay Mehta ji, M.K. Raina ji, Dr. Chandra Prakash Dwivedi Sahab, Meghna Gulzar, Nadira Babbar, Om Puri ji, and the list is endless. Mr. Jeevan was associated with the Rajasthan University, the drama department, as an examiner, director, and also as a paper setter. He also worked for Sangeet Natak Academy, drama consultant. He directed serials and 2 telefilms based on Ismat Chughai's novelette and another based on Rajasthani folk story written by our own Ashok Rahi ji for ETV Urdu, Hyderabad, Ramoji Rao Film City. He's been associated with famous Chanakya TV serial and with the famed director Dr. Chandra Prakash Dwivedi ji in his other projects. He has also written a book called Anukaran on learning acting for beginners and a cinematic novel based on the real story of the Conjurs of Bundi. And I'm sure today we're going to talk more on this book because this is absolutely a tribute to many people who are living here. Jeevanji has played the role of Pakistani's Lieutenant General in the film Razi, directed by India's very reputed film director Meghna Gulzar ji, and it was produced by famous film producer Karan Johar ji. As an actor, he's worked with famous film actor late Shri Om Puri Sahab also. His resume runs in about 7 pages. I'm sorry, due to the time constraint, we will not be able to read the entire, but I really wish to extend a huge gratitude and huge welcome to you, sir, for coming here. Thank you so very much. और इनसे बात करेंगे हमारे फोरम के मेंबर श्री अशोक राही साहब, द फेमस गांधी जी. अशोक जी ने गांधी का रोल किया था और अशोक जी को हम यहाँ पर जयपुर में, राजस्थान में जब भी ड्रामा की बात आती है तो अशोक जी की बात आती है. ही इज़ अ वेरी पॉपुलर राइटर, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट ऑफ द ड्रामा ग्रुप पीपल्स मीडिया एंड थिएटर और बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पर. बहुत बहुत धन्यवाद अशोक राही साहब. शुक्रिया अपरा जी, आपने बहुत मेरा काम बिल्कुल आसान कर दिया.
जयरूप जी के बारे में जो पूरा विस्तार से बताया, मैं भी वहीं से शुरुआत करने वाला था, लेकिन अब मैं उस बात को दोहराऊंगा नहीं। जयरूप जी, मुझे फ़ख्र है कि मुझे इनका दोस्त होने का फ़ख्र हासिल है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दोस्तों, एक गालिब साहब के एक शेर से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि बस की दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। दोस्तों, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग इस देश में काम करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जितने अच्छे कलाकार हैं, जितने ज़हीन लेखक हैं, उससे बेहतर इंसान है। मेरे दोस्त जयरूप जी एक बहुत शानदार इंसान है, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे अनुभव से कह रहा हूँ। नए साथियों को हमेशा उनकी मदद करने को उत्सुक रहते हैं। आप कहीं अटक गए किसी काम में तो आप इनसे जाके सलाह ले सकते हैं, और ऐसे मेरे पास भी कई एक्सपीरियंस हैं। इसी आधार पे कह रहा हूँ, और बड़े विनम्र, और जितने विनम्र उतने ही बेहतरीन कलाकार। बात की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा मैं भूमिका नहीं बनाऊंगा, कि जयरूप जी, आपका जो जन्म है, आपकी जो परवरिश है, बहुत एक व्यवसायी परिवार से आप जुड़े रहे, लेकिन वो सब उसको छोड़ के आप कला क्षेत्र में, थिएटर के क्षेत्र में आपका मन कैसे बना? पहले तो आप सबको नमस्कार। आप सब यहाँ पधारे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा आभार है। बहुत आभारी हूँ मैं आप सबका। काफ़ी मेरे बड़े जन भी हैं यहाँ पे और दोस्त भी हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे ऐसा, और राजस्थान फोरम ने ये मौका दिया मुझे, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत मैं आभारी हूँ राजस्थानी फोरम का। भारत में प्रचलन रहा है कि बहुत कब्र में जब पैर लटक जाते हैं या कब्र में चले जाते हैं तब तो सम्मान दिया जाता रहा है, लेकिन मेरे जैसा जवान अभी और ये ऐसा स्टेज, तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है कि ये उत्साहवर्धक है। मुझे डर है कि इतना ज़्यादा मुझे आंक लिया गया है, मैं उस पर खरा उतरूँगा या नहीं उतरूँगा, लेकिन मैं तो बहुत साधारण तरीके से जीता रहा हूँ और चीज़ें होती रही हैं। मैंने कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा सोच करके काम नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, तो साधारण तरीके से चीज़ें होती रहीं। बहुत पिछड़ा हुआ सा स्टूडेंट था मैं, इंटेलेक्ट में कमी नहीं थी, लेकिन बैक बेंचर था स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्योंकि टीचर्स मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, मैं टीचर्स में इंटरेस्ट नहीं लेता था। तो जयपुर जब आया मैं 71 में, तो 72 में, तो एक दोस्त मिला महाराजा कॉलेज में, अजय कार्तिक। उसने कहा कि छुट्टियों में क्या कर रहे हो? ऐसे ही घूमने गया था मैं महाराजा कॉलेज, तो मैंने कहा कि नहीं, कुछ खाली बैठा हूँ मैं तो उसने कहा कि वर्कशॉप करोगे? मैंने कहा वो क्या होता है वर्कशॉप में, मतलब गाड़ियाँ वगैरह बनती हैं? तो बोला नहीं, थिएटर वर्कशॉप। तो मैंने कहा थिएटर वर्कशॉप क्या होता है? बोले वहाँ नाटक सिखाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो उसको बुरा लगा, उसको लगा कि ये समझ नहीं रहा है बात के महत्व को। तो उसने कहा कि नहीं वो आसान नहीं है, वहाँ पे ऐसे एडमिशन नहीं मिलता है, फॉर्म भरना पड़ता है, 30 रुपये लगते हैं, 72 की बात है, और इंटरव्यू होगा तब उसमें एडमिशन मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि डायरेक्टर मेरे जान पहचान के हैं, तो मैं उनको बोल दूंगा। तो एस वासुदेव जी त्रिमूर्ति की
वर्कशॉप लगी थी वो, और वहाँ गया मैं, एडमिशन हो गया मेरा रिकमेंडेशन पे। तो पहली क्लास थी, वासु जी क्लास ले रहे थे, मैं आदत के अनुसार अपनी आदत के हिसाब से बैक बेंच पे जाके बैठ गया था। तो उन्होंने कहा कि वो मेयो कॉलेज से पढ़े हुए थे, बहुत ही साइंटिफिक माइंड था उनका, और बहुत मतलब इंटेलेक्ट भी उनका बहुत हाई लेवल का था, राजघराने से थे। तो उन्होंने कहा कि किसी भी चीज़ पे बात करने से पहले, पढ़ने से पहले उसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो थिएटर की डेफिनेशन पे बात करते हैं, नाटक क्या है। तो आगे यूनिवर्सिटी के अच्छे अच्छे स्टूडेंट बैठे थे, उन्होंने सब हाथ ऊपर कर लिया। मैं पीछे बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा नहीं वो पीछे जो बैठा है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे कहा है उन्होंने। तो मैं उनकी तरफ देखता रहा कि किसको कहा है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम खड़े हो जाओ। बोले बताओ। मैं क्या बताता, मैं तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मेरे फादर फैक्ट्रीज़ में इंटीरियर्स में रहे ज़्यादा। तो मैं 17 साल का था और तब तक इंटीरियर्स में सिक्योर रहता था। फैक्ट्रीज़ में गार्ड्स वगैरह सब, वो एक कॉलोनी में ही सब कुछ होता था, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल लाइफ का इंटरेक्शन मेरा था नहीं, तो मैं बड़ा सीधा सा, तो मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। तो लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि किसी ने मुझ में इंटरेस्ट लिया। तो मुझे लगा कि ये सही टीचर है। टीचर ऐसा होना चाहिए जो कमज़ोर स्टूडेंट को उठा करके पूछे, उसको जगा दे। तो मुझे लगा कि ये थिएटर, ये जहाँ आ गया हूँ मैं, ये सीखने की जगह है। इतने बढ़िया टीचर हैं, और वाकई वहीं से मेरी शुरुआत हुई। और थिएटर मुझे कब पकड़ लिया मुझे पता नहीं चला। ये तो मैं आज बता रहा हूँ, बाद में एनालाइज किया मैंने कि मैं इस वजह से वहाँ पकड़ा गया थिएटर में। थिएटर ने मुझे पकड़ लिया क्योंकि वहाँ टीचर ऐसे थे। और वाकई मेरी ज़िंदगी में अगर मैंने कुछ सीखा है तो थिएटर से ही सीखा है। तो इस तरह से फिर पिताजी ने मेरे कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, बिजनेस में आ जाओ। मैंने कहा नहीं मैं थिएटर करूँगा। तो उन्होंने फिर भसीन साहब से मुलाकात की, उनसे मिल करके उन्होंने कहा कि भाई ये मेरा लड़का जो है थिएटर करना चाहता है, बिजनेस में नहीं आ रहा है। तो भसीन साहब ने उनको समझाया कि आपके 3 लड़के हैं, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करने दो, इसकी मर्ज़ी का काम। तो इस तरह से मैं थिएटर में, मुझे फादर ने मेरे अलाउ किया। फिर उन्होंने कहा कि फिर अगर थिएटर ही करना है तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लो। तो यहाँ 8 साल थिएटर करने के बाद फिर NSD गया मैं। ये इस तरह से शुरुआत हुई। भसीन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और आपको ही नहीं सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों युवकों को बिगाड़ने का श्रेय भसीन साहब को जाता है। भाई साहब आपको सलाम है, आपकी संस्था त्रिमूर्ति को, और ऐसे ही बिगाड़ते हैं जैसे आपको बिगाड़ा। जरूर जी, आपने नाटक में अभिनय भी किया, निर्देशन भी किया, नाटक लिखा। जरूर जी का एक बहुत प्रसिद्ध नाटक है खजूर में अटका, और बहुत शो हुए हैं उसके मुंबई में, सैकड़ों शो हुए। बहुत अब हिलेरियस नाटक है, बड़ा देखने में बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, और मैंने उसको देखा है जरूर जी के निर्देशन में ही कई बार। तो लिखने का ये जो रुझान आपका बना, ये कैसे बना? मेरे दिमाग में बचपन से कहीं था कि मैं कोई एक किताब लिखूंगा। क्लैरिटी नहीं थी क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, मुझे नहीं मालूम था। ऐसी सोच लिया था क्योंकि मैगजीन्स, अच्छे मैगजीन्स फादर मंगाते थे, मैं वो मैगजीन्स पढ़ता था, कादम्बनी वगैरह अपने टाइम की अच्छी मैगजीन्स थी। तो लिटरेचर में इंटरेस्ट था मेरा, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। तो NSD जब कर रहा था तब मुझे समझ में आया कि यही अगर मेरा फील्ड होना है तो मुझे आखिरकार लिखना भी आना चाहिए। तो वहाँ सेकेंड ईयर से मैंने लिखना शुरू कर दिया था, और फाइनल ईयर में मैंने नाटक लिखने का प्रोजेक्ट लिया था। फाइनल जो प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें नाटक लेखन वहाँ से शुरू हो गया था मेरा। स्ट्रक्चर वगैरह पे, कैसे स्ट्रक्चर बनता है नाटक का, कैरेक्टर्स, लैंग्वेज, सिचुएशंस, क्लाइमैक्स, तो इन चीज़ों पे काम शुरू हो गया था। ये भी एक बताइए कि ये जो फिल्म लिखना और
नाटक लिखना, ये कैसे दोनों, क्या इनमें अलग है या कुछ समानता है या क्या? बहुत बड़ा फ़र्क है। हालांकि कैरेक्टर्स जो नाटक में हो या फिल्म में हो, कैरेक्टर्स की जो स्टडी है, साइकोलॉजिकल स्टडी है, वो तो बराबर ही होती है। और कहानी है या ग्राफ है, किस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, वो तो लगभग कॉमन होता है। लेकिन स्क्रीन प्ले राइटिंग और नाटक की विधा में बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि नाटक तो एक जगह पे होता है और 2 घंटे में, 2.5 घंटे में होता है। तो मूवमेंट की जगह नहीं है, लोकेशन पे जाने की जगह नहीं है आपके पास। जो कुछ होना है यहीं होना है, एक ही जगह पे होना है। कैमरे में बहुत बड़ी फैसिलिटी है मूवमेंट की। कैमरा कहीं भी जा सकता है, उसमें कोई भी इफ़ेक्ट पैदा किया जा सकता है। तो स्क्रीन प्ले राइटिंग बहुत वास्ट एरिया कवर करता है और इस वजह से, और कैमरे में फ्लेक्सिबिलिटी है क्लोज जाने की, वाइड जाने की। तो वो स्क्रीन प्ले राइटिंग बहुत डिफरेंट हो जाता है नाटक लेखन से। जी, आपने जो बात की अपनी जवानी की, जवान इंशाल्लाह मैं पिछले 35-30 बरस से मैं आपको लगातार देख रहा हूँ और आप में यूं के यूं हैं, जरा सा भी कुछ परिवर्तन नहीं है। ये इसके लिए क्या करते हैं? क्योंकि मैं तो आपके सामने देखो क्या हाल हो गए, रौनक तो आपके चेहरे पे है और वो आपको देखे से जो आती है रौनक, गालिब साहब ने कहा था। खैर ऐसा मैं कुछ स्पेशल तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये है, बहुत सोचा मैंने बाद में, क्योंकि मेरी उम्र लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो शायद इस वजह से कि मेरे फादर बचपन से मैंने देखा उनको योगा करते हुए, आसन्स करते हुए, और वो आदत मुझे लग गई थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा करता था। फिर एनएसडी में योगा की क्लासेस रेगुलर थी 3 साल, और ये दिमाग में बैठ गया था कि एक्टर को ठीक तो लगना चाहिए, तो अपना शरीर को ठीक तो रखना है। तो वो बॉडी बिल्डर तो नहीं बन पाया मैं, जैसे आजकल यंगस्टर्स बनते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत काम ज़रूर शरीर पे होता रहा, जिससे कि मेंटेन हो गया, बस इतना ही है। जरूर जी, आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़ाई की, यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में भी पढ़े, और ये एक थोड़ा सा एक विरोधाभास भी चलता है, क्योंकि आमतौर से युवा जो हमारे साथी हैं वो एक बात कहते हैं कि जो अभिनय है ये तो स्वयं स्फूर्त होता है, इनबिल्ट होता है, प्रतिभा होती है, जन्मजात प्रतिभा होती है, और इसके लिए एनएसडी वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी देखा गया है कि एनएसडी ने, ऐसा नहीं है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने बहुत सारे ज़हीन कलाकार भी निकले हैं, लेकिन जितना इतनी पढ़ाई करने के बाद जो उतना होना चाहिए अभिनय के क्षेत्र में, उतना उस तरह उसके परिणाम जो नहीं आ पाते, इसमें कुछ आप अंतर विरोध देखते हैं? ये जो आपका सवाल है, मुझे लगता है ये तो बहुत गहरा सवाल है और हमेशा से चला आ रहा है। ये जैसे ज़िंदगी है उतना ही गहरा सवाल है ये, कि टैलेंट पैदाइशी होता है या सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। मुझे लगता है दोनों ही बातें हैं। मुझे काफ़ी लेट, काफ़ी काम करने के बाद 1-2 एक्टर कभी ऐसे सामने पड़े जिनको देख के घबराहट हो गई मुझे, कि मैं एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ और सामने वाला कोई ट्रेनिंग नहीं है उसकी और बहुत बढ़िया एक्सप्रेशंस दे रहा है। तो सोचने पे मजबूर हो गया मैं, क्योंकि एनएसडी करने के बाद मुझसे एक्टिंग नहीं हो रही थी। मैं गणित सीख गया था साइकोलॉजिकली, और वो रीडिंग करके स्क्रिप्ट की और कैरेक्टर और सीन्स पढ़ करके, कि इतना हाथ चलाऊंगा, इतना पैर चलाऊंगा, इतना मूवमेंट करूंगा। गणित में फंस गया मैं, तो एक्टिंग नहीं हो पा रही थी। फिर नसीर भाई का एक आर्टिकल पढ़ा मैंने माधुरी में, उन दिनों माधुरी आती थी, 81 की बात है, 82 की शायद। तो उसमें उन्होंने लिखा, इंटरव्यू में अपने कहा था कि गणित से एक्टिंग नहीं होती, पढ़ करके एक्टिंग नहीं होती। तो तब मुझे समझ में आया
उन्होंने कहा था कि वो गणित जो है सीखा हुआ जो है वो अंदर चला जाना चाहिए और इंट्यूटिवनेस ऊपर आनी चाहिए। तब मुझे समझ में आया। तो एक दो जगह जहाँ मैं फंस गया, मैंने देखा कि इस एक्टर को तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली इसने और बहुत बढ़िया एक्सप्रेशंस दे रहा है। तो बहुत सोचा, मैंने एनालाइज किया, तो मुझे समझ में आया कि वो इंट्यूटिवली हो रहा था और वो कंडीशन था उस सिचुएशन में, उस मूड में, उसको मूड मिल गया था और उस समय वो बहुत बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन बाकी बाद में वो कई जगहों पे उसके हिसाब से जब सिचुएशन नहीं बनी और उसके हिसाब से वो कैरेक्टर नहीं मिला तो वो अच्छा काम नहीं भी कर पा रहा था, ऐसा भी हुआ। तो ट्रेन्ड एक्टर के साथ ये फ़ायदा होता है कि वो जब फ्लो में आ जाता है तो वो उसकी इंट्यूटिवनेस पे भी पकड़ हो जाए और मैथमेटिक्स पे भी पकड़ हो जाए तो वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, हर सिचुएशन में, हर कैरेक्टर में ढाल सकता है, क्योंकि उसके पास एनालिसिस है, एनालिटिकल पावर है, साइकोलॉजी की समझ है, गणित की समझ है, स्क्रिप्ट की समझ है, डायलॉग डिलीवरी की समझ है। इंट्यूटिव एक्टर जो है वो कुछ एक बीच में एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्टिंग को ज़्यादातर ऐसा समझा जाता है कि एक्टिंग कोई काम नहीं है। इंजीनियर होना बहुत बड़ा काम है, डॉक्टर होना प्रोफेशन है, क्योंकि मिलिट्री है वो एक डिसिप्लिन है। तो बाकी सब प्रोफेशंस में डिसिप्लिन होता है, एक्टिंग में कोई डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, ऐसा समझा जाता था। लेकिन मेरा ये रिसर्च है कि एक्टिंग भी अपने आप में बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? इंजीनियर बनता है तो वो इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद उसका अपना डिसिप्लिन होता है कि वो बिल्डिंग्स के बारे में, बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में, डिज़ाइन के बारे में सीखता है। और जब कोर्स करके निकलता है तो उसकी निगाह, उसकी डिसिप्लिन जो है वो उन चीज़ों के लिए बन जाती है कि वो उन चीज़ों को ही देखता है। बिल्डिंग कैसी है, इसका मटेरियल कैसा है, इसका डिज़ाइन कैसा है, ये उसका डिसिप्लिन है। ऐसे ही डॉक्टर होता है, वो मेडिसिन पढ़ के निकलता है, उसका डिसिप्लिन होता है कि वो सामने वाले का की बॉडी देखेगा, उसका चेहरा देखेगा, उसकी रंग रूप देखेगा उसकी हेल्थ देखेगा, ये उसका डिसिप्लिन है। ऐसे एक्टर का भी डिसिप्लिन है कि सामने वाला किस तरह से बोल रहा है, उसका उतार चढ़ाव कैसा है, उसका पिच क्या है बोलने का, उसके हाथ पैर कैसे चल रहे हैं, तो उससे उसकी साइकोलॉजी मालूम पड़ती है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पकड़ता है एक्टर, ये एक्टर का डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन है, बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन है। अब क्या होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कुछ ना कुछ तो मिला होता है। इस बात को अगर छोड़ भी दें कि वो पिछले जन्म से लेके आया है, मान लीजिए कुछ लोग नहीं मानेंगे तो कंट्रोवर्सी है तो छोड़ देते हैं, लेकिन वो जहाँ पैदा होता है, जिस घर में पैदा होता है, जिस माहौल में पैदा होता है, जिस क्लास में पैदा होता है, जिस पॉलिटिकल सिचुएशन में पैदा होता है, जिन रिश्तेदारों के बीच में बड़ा होता है, उन सब के चेहरे, हाव भाव, बातचीत, वो सब देखते हुए उसका एक डिसिप्लिन बनता चला जाता है। रिकॉर्डिंग होती है उसके अंदर और वो सीख रहा होता है, वो उसका डिसिप्लिन है। अब वो उसमें किसी ना किसी तरह का डिसिप्लिन ज़रूर आएगा, चाहे वो सामने वाले की आवाज़ को सुनता हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखता हो, या बिल्डिंग्स को ज़्यादा देखता हो, विजुअल सेंस उसका स्ट्रांग हो, या उसका हियरिंग सेंस ज़्यादा स्ट्रांग हो। कुछ ना कुछ डिसिप्लिन तो पैदा होता है गिवन सर्कमस्टांसेस में। कुछ बच्चों में जिनमें बॉडी लैंग्वेज देखने का, या जो मास्टर की नकल बहुत अच्छे करते हैं, अपने साथियों की नकल बहुत अच्छे करते हैं, तो उनमें बॉडी लैंग्वेज के लिए और डायलॉग डिलीवरी का सेंस पैदा हो जाता है। वो उनका डिसिप्लिन है, वो इंट्यूटिव डिसिप्लिन है। यही हम फिर गणित में सीखते हैं, क्लासेस में सीखते हैं। तो इस तरह से डिसिप्लिन तो एक्टिंग में भी चाहिए। तो अगर इंट्यूटिव है, उसमें ऑलरेडी कुछ चीज़ है, एग्जिस्ट कर रही है, उस तरह का डिसिप्लिन है, और अगर उसकी पढ़ाई उसको मिल जाए तो बहुत मज जाएगा वो, और बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए उस तरह का डिसिप्लिन नहीं है और गलती से इस लाइन में आ गया,
और उसने ट्रेनिंग ले ली, तो कुछ तो डिसिप्लिन पैदा होगा उसमें, और धीरे धीरे उम्र होते 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 उस डिसिप्लिन में रहते रहते वो भी कुछ ना कुछ सीख जाएगा। तो पैदाइशी भी होता है, लेकिन ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी। इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, तकरीबन 25-30 बरस पहले इस देश में एक बहुत बड़ा सीरियल आया था, चाणक्य। और चाणक्य चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब ने उसको लिखा भी था, डायरेक्ट भी किया था। और चाणक्य में एक सुसिद्धार्थक एक उसमें कैरेक्टर था, एक जासूस का, गुप्तचर का। और वो जब पर्दे पर आया तो एकदम ऐसा लगा कि बहुत लोगों ने, बहुत लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने वो सीरियल देखा, वो उस चरित्र को पसंद किया। वो सुसिद्धार्थक जयरूप जी थे। और मैं जयरूप जी से पूछना चाहूँगा कि वो एक ऐतिहासिक धारावाहिक था, और उसके चरित्र के लिए आपने अपने आप को कैसे तैयार किया? मैंने तैयार नहीं किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। वो सकम चांसेस थी। सकम चांस में एक्टर के लिए भी, अगर मैंने जैसे कहा इंट्यूटिव एक्टर है, उसको मौका मिल गया, उसके मूड के हिसाब से काम मिल गया, कैरेक्टर मिल गया, डायरेक्टर अच्छा मिल गया, सिचुएशन अच्छी मिल गई, तो अच्छा काम करेगा, वो हो जाता है। सकम चांसेस करवाती हैं। मैं शेखर कपूर जी को असिस्ट कर रहा था और थिएटर भी कर रहा था उनके सहारे से। तो थिएटर में मेरा नाम हो रहा था बॉम्बे में, नादिरा बब्बर जी के साथ जुड़ा हुआ था, ओमपुरी साहब के साथ जुड़ा हुआ था। तो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी MBBS करके निकले थे, फ्रेश एकदम, साइंस के स्टूडेंट थे और बहुत ब्राइट थे। और बॉम्बे में कॉलेज लेवल पे बहुत अच्छा थिएटर होता है, प्रोफेशनल थिएटर होता है। सफ़ी इनामदार साहब और वो कॉमेडियन थे ना, सतीश कौशिक, नहीं, सफ़ी इनामदार साहब कॉलेज से निकले हुए थे, कॉलेज के थिएटर से। और वो राइटर एक्टर थे ना, वो जो कॉमेडियन, बहुत कादर खान साहब, ये सब कॉलेज वहाँ के, महाराष्ट्र के, बॉम्बे के कॉलेज से निकले हुए थे, कितने टैलेंटेड। तो वहाँ का कॉलेज का थिएटर वो देख रहे थे, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी। तो उनका इंटरेस्ट था, थिएटर ज़्यादा नहीं किया था उन्होंने, लेकिन इंटरेस्ट था उनका, एक्सपोजर था थिएटर का, बहुत अच्छा एक्सपोजर था उनके सामने। तो वो मेरा एक नाटक खजूर में अटका बहुत पॉपुलर हुआ वहाँ पे, पृथ्वी थिएटर पे 2.5 साल चला, 7 साल चला, 250 शोज़ हुए उसके। तो मतलब वो ऐसा नाटक था कि कॉमेडी का, वो कि उसमें लोगों को सीट से गिरते हुए देखा मैंने, हंसते हंसते लोग सीट से गिर जाते थे। तो पॉपुलर हो गया था मैं बहुत। तो वो मेरी रिहर्सल्स पे आके बैठते थे, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी। और मैं जब रिहर्सल से निकलता था तो मेरे पीछे पीछे आते थे कि जरूर भाई वो उसमें ऐसे कैसे किया, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो मतलब वो बड़े भाई की तरह मुझे मानते थे और बड़ा रिस्पेक्ट देते थे। फिर बाद में उनका नाटक जो है, वो स्क्रिप्ट जो है चंद्रगुप्त चाणक्य की, दूरदर्शन से अप्रूव हो गई। उस समय प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, सिर्फ दूरदर्शन था, अर्ली 90s में। तो वहाँ से अप्रूवल होना बहुत बड़ी बात थी। वहाँ से अप्रूव हो गया मतलब स्पॉन्सर मिलेंगे, पैसा मिलेगा और नेशनल एक्सपोजर मिलेगा। तो वो मुझसे आकर के वो एपिसोड्स डिस्कस करते थे अपने, वगैरह वगैरह। तो वो बड़े मतलब बहुत मानते थे, इज्जत देते थे मुझे। तो जब उनका चाणक्य सीरियल शुरू हुआ तो मैंने कास्टिंग में उनकी बहुत मदद की, क्योंकि मैं शेखर जी के यहाँ कास्टिंग वगैरह करता था। तो ज़्यादातर एक्टर्स को मुझसे मिलना पड़ता था, और मैं एक्टर्स में इंटरेस्ट भी लेता था, चूँकि थिएटर का था मैं। तो मेरे पास बहुत अच्छी फाइल्स थी आर्टिस्टों की, बॉम्बे के आर्टिस्टों की। तो मैंने उनकी आर्टिस्टों से भी मदद की और टेक्निकली भी मैंने उनकी मदद की। उनका सेट डिज़ाइनर मैंने मिलवाया था उनको, तो उनको काफ़ी मदद की थी मैंने। तो जब उनका सीरियल शुरू हो गया तो उन्होंने कहा कि जरूर भाई आपको रोल करना है। मैंने कहा नहीं, मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और आप भी अपना काम कर रहे हैं,
कोई ज़रूरत नहीं है, अपना अपना काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि तो वो सीन लिखते थे मेरे लिए और ला के मुझे सुनाते थे, और फेमस हो चुके थे वो। सीरियल को बहुत ज़बरदस्त फेम मिला, बहुत ज़बरदस्त फेम मिला। और टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा आधा पेज छपा था पहले दिन। तो वो सीन मुझे सुनाते थे, लेकिन मैंने सोच नहीं पाया था मैं कि मुझे करना है। मैं कहता था नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया फिल्म सिटी में और कहा कि नाप दे दीजिए अपना। तब मुझे समझ में आया कि ये तो मामला सीरियस हो गया है। तो एक्चुअली मैं शेखर कपूर जी को असिस्ट कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा था कि एक्टिंग नहीं करना है तुमको, इस ये कह के उन्होंने ज्वाइन करवाया था मुझे। तो मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मैं एक्टिंग करूँगा। तो जब नाप आप देने लगे तब मैंने उनसे पूछा कि ये काम कब से शुरू होगा। बोले अगले हफ्ते से आपकी शूटिंग है। तो मैं समझ नहीं पाया, मैं घबरा गया। मैंने कहा कि मुझे तो शेखर जी से पूछना पड़ेगा क्योंकि उनको मैंने कमिट किया हुआ है। बोले नहीं आप बात कर लो, मैंने तो इतने बढ़िया बढ़िया सीन्स लिखे हैं आपके लिए। तो ऑथर बैक सीन्स थे वो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो मैंने लिखा है कॉमेडी हो, सारे कैरेक्टर्स बहुत सीरियस हैं, सिर्फ यही एक कॉमिक कैरेक्टर है और मैंने स्पेशली आपके लिए लिखा है। बहुत गजब के सीन्स लिखे थे उन्होंने। तो मैंने शेखर जी से पूछा और उनको फिर शेखर जी ने कहा कि हाँ ठीक है तुम करो। तो इस तरह से मैं गया वहाँ पे और वो किनारे बैठ गए डॉक्टर चंद्र प्रकाश। बोले कि आप जो करेंगे वो होगा, बस मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा आपको, कैमरा चलेगा, आप शूट कीजिए जो करना है आपको। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मैंने कहा कि ये क्या हुआ, डायरेक्टर किनारे बैठ जाए बहुत बड़ी बात है। वो मुझे सम्मान दे रहे थे और मेरे दिमाग में ही नहीं था कि ये मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, मैंने सोचा ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, आदत थी मुझे स्क्रिप्ट पे मेहनत करने की, तो काम अपना करके गया था, मैं डायलॉग्स वगैरह याद करके गया था। तो मैंने कहा ठीक है रिहर्सल करते हैं। रिहर्सल किया, उन्होंने कहा ओके ठीक है हो गया शूट। अरे कैमरा कब चलाया मुझे पता ही नहीं। तो इस तरह से शूट हो गया, मैं करता गया। और हाँ ये बाद में उन्होंने वो सीन्स में आ जाते थे बीच में, हाँ चलो भाई थोड़ा और प्रोवोक करते थे मुझे, बस और होता जाता था। तो मैंने भी सोच के नहीं किया, वहाँ गणित लगाया ही नहीं, मैंने सोच के काम ही नहीं किया, क्या और हो गया। तो वो मतलब वो ऑथर बैक रोल था, वो राइटर ने लिखा था ऐसा, मुझे इतने प्यार से देख रहे थे वो 4-5-6 सालों से, और उन्होंने लिखा और वो हो गया टेलर मेड। ये बहुत रेयर सर्कमस्टेंस है। दोस्तों, रामोजी राव ने जब उर्दू चैनल शुरू किया ईटीवी का, तो उसमें जो पहली फिल्म उन्होंने दिखाई उर्दू चैनल के ओपनिंग में, वो फिल्म, उस फिल्म का निर्देशन जरूब जी ने किया था। जरूब जी, उस फिल्म के बारे में भी थोड़ी सी आप बात बताएं। लिखी तो आपने ही थी, अशोक राय जी की कहानी, इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं बहुत बढ़िया कहानी थी। और ईटीवी उर्दू वालों ने कम से कम 20 टेलीफिल्म्स बनवाई थी। उनमें 20 टेलीफिल्म में एक डायरेक्टर अशोक चक्रवर्ती एफटीआई पूना के भी थे, फिल्म इंस्टीट्यूट से। और उनकी मुझे इतना जिक्र सुनने को मिला वहाँ पे कि उन्होंने जब पहली फिल्म वहाँ पे बनाई तो लोगों ने बहुत तारीफ़ की उनकी, और दूसरी फिल्म उनको बनाने के लिए दी गई। इस तरह से 2 टेलीफिल्म्स उन्होंने वहाँ बनाई। लेकिन कहानी इतनी बढ़िया थी जो अशोक जी ने लिखी थी कि वो उस कहानी की वजह से मेरी टेलीफिल्म जो है वो सबसे पहले दिखाई गई। सबसे पहले ओपनिंग में दिलीप कुमार साहब जी का भाषण था, और उसके बाद ये हंसुली फिल्म, हंसुली नाम से इन्होंने कहानी लिखी थी, वो हंसुली दिखाई गई पहला प्रोग्राम। दोस्तों, बात और भी है। मैं शेखर कपूर जी के साथ जो आपके एक्सपीरियंस रहे, बहुत नामी डायरेक्टर रहे हैं, वो आप सब लोग जानते हैं। उनके साथ के भी कुछ अनुभव आप बताएं। अनुभव तो उनके साथ के बहुत हैं, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ही इज़ जेम ऑफ अ पर्सन। मैं ये कहूँगा कि लंदन से वो अपना कोर्स किया उन्होंने सीए का, और यहाँ आए तो एक बार जावेद अख्तर साहब के साथ फिल्म के क्लाइमैक्स के बारे में उनसे झगड़ा चल रहा था।
मैं भी साथ में बैठा हुआ था, तो उन्होंने, जावेद साहब ने, तो वो क्लाइमैक्स को लेकर के शेखर जी ने कहा कि अरे क्या ये लिखा है आपने इसमें, आई लाइन पे वो चील कौवे आ जाते हैं, वो उनको मदद करेंगे और हीरो हीरोइन को, और वो उनके पुरखे हैं। तो जावेद साहब चिढ़ गए, उन्होंने कहा कि यार तुम इंडियन नहीं हो, तुम इंग्लैंड में पढ़ के आए हो, तुम्हारी सोच इंडियन नहीं है। तो वो शुरू में आए तो वो उनको हिंदी भी नहीं आती थी अच्छी तरह से, तो वो एक्टिंग के लिए कहीं जाते थे, जैसे दृष्टि फिल्म में उन्होंने काम किया, गोविंद निलानी जी की फिल्म में, तो मुझे साथ ले जाते थे हिंदी के लिए, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और उनको हिंदी नहीं आती थी। लेकिन बहुत प्यार मिला उनसे मुझे, और वो जहाँ भी जाते थे मुझे साथ लेके जाते थे, और बहुत एक्सपोजर मिला उनके साथ मुझे। सब फिल्म के बड़ी बड़ी फिल्म की हस्तियाँ जो उनसे जुड़ी हुई थी, उन सब के घरों में जाना, मीटिंग्स में जाना, फिल्म इंडस्ट्री को अंदर से देखने का मुझे मौका मिला उनके साथ, और बहुत प्यार मिला उनसे मुझे। मेरी कमी रही कि मैं डायरेक्शन में चल नहीं पाया। मौके मुझे मिले, बॉम्बे ने मौका दिया मुझे, लेकिन मुझे बम्बई की समझ नहीं थी उस समय तक। जैसे अपने टाइम के सबसे बड़े आर्ट डायरेक्टर बंगाली दास गुप्ता जी, पहला नाम भूल रहा हूँ मैं, तो वो अपने टाइम के मिस्टर इंडिया का सेट वगैरह उन्होंने लगाया था, सबसे बड़े आर्ट डायरेक्टर थे अपने समय के। तो उन्होंने मुझे, जब मैंने शेखर जी को छोड़ा, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ आ जा, स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो वो बोलते थे, डिस्कस करते थे, और फिर मैं सीन्स लिखता था। तो एक बार शेखर जी मिल गए मुझे, बोले क्या चल रहा है? मैंने कहा कि वो दासगुप्ता जी के साथ बैठ रहा हूँ आजकल राइटिंग पे। बोले वो फिल्म बनाएगा क्या? इतना बड़ा काम चल रहा है उसका, आर्ट डायरेक्शन का, वो छोड़ के वो प्रोडक्शन में जाएगा, डायरेक्ट करेगा? तो मैंने उनकी बात को एज इट इज़ ले लिया, तो मैंने जाना बंद कर दिया। और 1 महीने बाद वो मिले दासगुप्ता जी, तो बोले अरे जरूर, तूने फ़ोन नहीं किया, आया नहीं। तो मैंने वही बात मैंने ऐसी कह दी उनसे, मैंने कहा सर आप फिल्म बनाएंगे क्या? और बाप रे, वो तो बहुत नाराज़ हो गए मुझसे और गुस्सा होकर चले गए। अगर मुझ में मैनिपुलेशन होता उस समय, मैं जाता रहता उनके पास, तो मैं समझता हूँ कि आखिर में डायरेक्ट करने के लिए मुझे ही आगे खड़ा करते वो। मैंने चांस छोड़ दिया, ये मैं बॉम्बे को समझ नहीं पाया था। ऐसे कई मौके मेरे सामने आए, लेकिन अब जाके वो होशियारी आई तो मौके चले गए। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं और बातें तो खत्म नहीं होंगी, लेकिन मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आपके कोई सवाल हों तो आप जरूर जी से ज़रूर पूछेगा। सेंस कुछ मैं यूं ले पाया कि आपके फादर गए, उन्होंने कहा नाटक करना चाहता है लड़का, तो उनको सामने से जवाब मिला कि ठीक है, आपके 3 बेटे हैं। हमारे गांव में इसको यूं कहा जाता है कि आपके 3 बेटे हैं, एक छोरे को देश पे कुर्बान करके फौज में भर्ती हो जाते हैं, सब फौजी हैं। तो उस समय जो सेंस निकल कर आया वो यूं आया कि उन सज्जन ने ये कहा कि एक बेटे को आप थिएटर पे कुर्बान कर दो, तो आप कुर्बान हो गए। आज मैं आपकी जुबान से फिर से सुनना चाहता हूँ, बहुत बार सुना, किसी भी व्यक्ति को, किसी युवा को थिएटर पर क्यों कुर्बान होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उसको कुर्बान, तो फिर उसकी जिंदगी है। जिंदगी में जीने का हक तो सबको है, और हर तरह से जीने का हक है। क्या बात? थैंक यू। हाँ ललित जी। सर मैं कहती है, हमारे यहाँ की जो सीरियल क्वीन है शो कॉल्ड, वो कहती है जो हो रहा है वही मैं दिखा रही हूँ। अरे भाई, समाज में कहीं आपके घर के बाहर कचरा पड़ा है तो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी, उठा ले जाएगी अगले दिन, आज नहीं कल ले जाएगी। अब कहीं देश में सुदूर कहीं कोई घटना हो गई, आप उसको महिमा मंडित करके सारे देश में फैला रहे हैं। इट्स लाइक आप सारा कचरा फैला रहे हैं। भाई पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन आप उसको महिमा मंडित कर रहे हैं। यंगस्टर्स उसको फॉलो कर रहे हैं, अपने रोल मॉडल फिल्म एक्टर्स को मान रहे हैं, उनकी आप निजी जिंदगी देखिए, उनका रोल मॉडल मान रहे हैं। जो हमारे असली रोल मॉडल है विवेकानंद है,
स्वामी राम तीर्थ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको रोल मॉडल नहीं मानते। तो मैं समझता हूँ कि जो एक्टर्स हैं या जो सो कॉल्ड अपने हीरो हैं बॉम्बे के, उनको थोड़ा सा संयमित होना चाहिए, पारदर्शिता उनके जीवन में होनी चाहिए। मतलब सही मायने में रोल मॉडल कैसे हो सकते हैं वो? अब एक दोहरी जिंदगी वो जीते हैं, फिल्मों में कुछ है, हकीकत में कुछ है। आपका क्या कहना है सर? बहुत अच्छी बात है, सिंसियरली करना चाहिए। एक मैं छोटा सा एक मतलब मुझे याद आ गया, मैं बॉम्बे से बहुत डरता था और माइक चल ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, मैं भी थिएटर में हूँ। जी, अब तो कचरे का सिस्टम बहुत बढ़िया हो गया है, म्यूनिसिपैलिटी बहुत अच्छा काम करती है। पहले क्या होता था, वो कचरा निकाल के बाहर डालते थे, सड़क में गलियों पे सब कचरा बहुत ढेर लगा रहता था, बड़ी दिक्कत होती थी वहाँ से निकलने में। तो मैं बड़ा नाक मूंछ पर क्या गंदगी है बॉम्बे में, तो मैं बड़ा डिप्रेशन में आ गया सिंसियरली। और मैं बहुत घबरा गया बॉम्बे से। और मुझे रास्ते में चलते हुए शाम के वक्त, रात के वक्त अंधेरा, 2 बिल्डिंग्स के बीच में अंधेरा नजर आता था, लाइट नहीं दिखती थी मुझे। फिर मैं लोगों से कहना शुरू कर दिया मैंने कि मुझे अंधेरा दिखता है, लाइट की तरफ नहीं देख पाता हूँ मैं। बाद में मुझे समझ में आया कि गड़बड़ हो गई है मेरे साथ। फिर मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। मुझे समझ में आया कि मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, कि कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना है, मुझे तय करना पड़ेगा। क्या बात, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन हाँ, बहुत कूल। बॉम्बे में कूल का कुछ और मतलब नहीं, आप वाकई में कूल है। हकीकत क्या है अपनी जिंदगी की? कभी गुस्सा भी आता है आपको? जिंदगी को पलटा है मैंने जी। मैं बहुत हुआ करता था और असल में समझ नहीं थी मुझे बचपन में। मैंने बताया कि मेरे फादर फैक्ट्रीज में रहे, तो बहुत सिक्योर कंडीशंस में रहा मैं, और इंटरेक्शंस नहीं थी, तो मुझे ज़िंदगी की समझ नहीं थी। 17 साल तक मैं फैक्ट्रीज में रहा फादर के साथ। तो मैंने अपने आप से कहा कि मुझे ज़िंदगी नहीं समझ में आ रही है, मुझे सीखना है, और सीखने में बहुत समय लगा मुझे। और मेरे मदर फादर भी ऐसे नहीं थे, 6 भाई बहन हैं हम लोग। तो और फादर अपने मदर फादर की भी केयर करते थे, और रिलेशंस में भी केयर करते थे वो। तो जो आज के का सिस्टम है, आज के जो पेरेंट्स हैं बहुत अपने बच्चों की, कम बच्चे पैदा करते हैं, बहुत एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, बहुत केयर करते हैं, 24 घंटे निगरानी रखते हैं, वैसा नहीं था हमारा सिस्टम। तो निगरानी नहीं होती थी। तो जिस गली में भी जहाँ चाहे भटक सकते हैं, तो भटकाव होते 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 बहुत समय लगा। फिर जब मैं 45 का हो गया, तब मैंने तय किया कि मुझे अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, मुझे कोई भी रिलेशन गलत नहीं रखना है, किसी भी रिलेशन में मुझे बहुत खुशनुमापन रखना है। और अपने आप को मैंने तय करके बदला, और अपने गुस्से को ख़त्म किया, और हर रिलेशन को रिस्पेक्ट देना शुरू किया। पूरा कंप्लीटली चेंज किया। वो मुझे ऐसा लगा कि राइटल एस्पेक्ट मेरे दिमाग में कभी भी रहा नहीं। मेरे फादर ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सिक्योर रखा। 43 की एज में बॉम्बे छोड़ के आ गया था मैं 97 में। तो उन्होंने कहा कि 43 की एज में मुझे उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं हूं। बहुत बड़ी बात है। कुछ अपने मन का कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्या शुरू कर सकता हूँ। अभी खाली बैठा हूँ, और जो थोड़ा बहुत पाया है वो वापस भी करना है। तो उसके लिए मैं
क्योंकि शुरू के हालात ऐसे थे, आज तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे सिखाने वाले हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, लेकिन जो एक्टर्स शुरू में आते थे, अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती थी। तो मुझे लगा कि कोई NSD पढ़ने के बाद भी मुझे लगा कि कोई ऐसी किताब सरल तरीके से नहीं लिखी गई है जिसमें प्रॉपर गाइडेंस हो न्यू कमर्स के लिए। तो एक ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें पूरा डिसिप्लिन कवर करता हो, जो एक कम से कम एक बिगनर को क्या फील्ड है कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए और कुछ बेसिक्स टेक्निकल चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसलिए मैंने प्लान करके, उस समय तक मेरा राइटिंग स्किल खिले नहीं थे, तो उसको बनाने में, उस किताब को लिखने में मुझे 6-7 साल लगे। तो पहले स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसको लिखना शुरू किया, फिर चैप्टर्स रिफाइन किए। ऐसे करते करते मैंने इस तरह से प्लानिंग की कि ये किताब जो भी पढ़ लेगा उसको ये एक्टिंग का पूरा फील्ड समझ में आ जाएगा और टेक्निकल जो है वो बेसिक सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो उसकी शुरुआत हो सकती है। ये सोच करके मैंने वो अनुकरण किताब लिखी। और वो मैंने रविंद्र मंच से रिक्वेस्ट की कि इसको छाप सकें, तो मिनिस्ट्री से अप्रूव हुई वो किताब छपने के लिए। रंगमंच की जो उस समय मैनेजर थी, उन्होंने हेल्प की मेरी, और जब किताब छप गई तो उन्होंने कहा कि 100 रुपये इसकी कीमत रख देते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे जिया जी जिस संस्था में हैं, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहाँ के जो प्रिंटर थे, उन्होंने जिया जी की वजह से उन्होंने बहुत सस्ते में छाप दी थी। तो मैंने कहा कि 20 रुपये पर कॉपी इसकी पड़ी है, तो 20 रुपये ही रहनी चाहिए ताकि कोई भी इसको अफोर्ड कर सके, इससे कमाई नहीं होनी चाहिए। वो मैंने रविंद्र मंच को डेडिकेट की वो किताब, और जो पहले गुरु थे वासु जी, उनके नाम पे वो डेडिकेट की किताब। जरूर जी, आपने गांधी का भी रोल किया था ना? हाँ, वो शुरू किया था, वो सीरियल शुरू हुई थी, उसके कुछ 20 एपिसोड आए ऑन एयर, दूरदर्शन का प्रोजेक्ट था वो, लेकिन वो आगे चलनी थी, लंबी चलनी थी सीरियल। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैंने 2 महीने अनाज नहीं खाया उसके लिए, पेट कम करने के लिए, और बाद में मुझे कई बीमारियां सहनी पड़ी उसकी वजह से, वीकनेस बहुत हो गई थी। लेकिन वो जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, वो कृष्ण राघव जी, वो तब तक लिटरेचर पे ही काम करते थे, राग दरबारी और श्रीकांत, शरद चंद्र जी के नॉवल पे, और सब बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए थे। तो दूरदर्शन ने उनको ये ग्रांट की थी सीरियल, और 25 लाख रुपए उनको दिए थे, और 10 लाख उनको या 15 लाख गांधी ग्राम से मिले थे। दुर्भाग्य कि उनका लड़का बाहर से कोर्स करके आया था, उसको इंडस्ट्री शुरू करनी थी, तो इंडस्ट्री शुरू हो गई। दोस्तों, हाँ, चंद्रजीत जी, अंतिम सवाल है जी। सर, एक्चुअली मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा है कि 2001 में आपको सेलेक्ट किया था और काम करना शुरू किया था, तो 2001 से लेकर अभी तक की ये जो पूरी जर्नी है आपके सामने गुजरी है, आपने हमें भी बढ़ते देखा है, आपने भी काम किया है, वो क्या अनुभव है आपका? वो मैं चाहता हूँ कि इस मौके पर सबको पता होना चाहिए, कैसे उस क्षण की शुरुआत हुई थी, क्या सोच थी, और आज हम कहाँ तक पहुँचे? बड़ा हस्त मिले। मैं जब आ गया यहाँ 97 में बॉम्बे छोड़ करके, तो माननीय श्री प्रमोद भसीन जी ने कहा कि तुम कुछ क्या करना चाहते हो, तो मैंने कहा कुछ वर्कशॉप करना चाहता हूँ। पैसा मेरे दिमाग में रहा नहीं, कभी पैसा कमा भी नहीं पाया मैं। तो भाई साहब ने कहा कि जगह मैं दे देता हूँ, तो वो जगह इन्होंने दे दी, और मैंने ऐसी बातचीत की तो 5-6 बच्चे आ गए मेरे साथ, और वहाँ हमने शुरू कर दिया। तो भाई साहब ने कहा कि तुम प्रोडक्शन का दिमाग में मत रखो, ट्रेनिंग चलाते जाओ, प्रोडक्शन हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो वहाँ हमने, मुझे याद नहीं है, 4 महीने या 5 महीने कुछ क्लासेस की। है 1.5 साल सर, 1.5 साल। 1.5 साल था जी सर। गगन उसमें पार्ट था। गगन आज बहुत अच्छा काम कर रहा है।
तो वो 6 बच्चे थे उसमें, और वो क्लासेस चलती नहीं, हमने प्रोडक्शन नहीं किया, कुछ सीन्स करते रहे वहाँ पे, बाकी काम करते रहे, सोच पे, विचार पे काम करते रहे कि कैसे सोचना चाहिए, कैसे ज़िंदगी के बारे में भी मुझे ये डेवलप हुआ कैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाद में भी मैंने यहाँ क्लासेस चलाई एक्टिंग की, तो उसमें स्टूडेंट्स को मैं ज़िंदगी पहले सिखाता था, थिएटर बाद में सिखाता था। तो ये एक चीज़ जो है, ये मुझे बाद में समझ में आया कि ये बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है। और वो भाई साहब का थैंक्स उस समय नहीं बोला मैंने, आज बोल रहा हूँ। तो आज वो 6 लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या बात है, क्या जी। दोस्तों, अब हम समय हो गया है। इस बातचीत की शुरुआत भी मैंने एक शेर से की थी, और वो शेर जरूर जी के लिए था, और अब एक शेर मैं अपने लिए कहता हूँ। गांधी का इन्होंने रोल किया, वो भी सुन लीजिए कि बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ हैं। बुद्धू मियाँ भी हजरत गांधी के साथ हैं, गो खाक हैं मगर आंधी के साथ हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। अपरा जी। बात बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, और जैसे कि हम सबको मालूम था कि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने जाने वाली है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, जितना हम्बल खुद इंसान होता है, उतनी ही ऑनेस्ट उनकी जर्नी होती है, क्योंकि वो उस ऑनेस्टी से अपने बारे में बता सकते हैं। और जिस ऑनेस्टी से आज आपने अपनी बात रखी, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आप यहाँ जयपुर आए, आप यहाँ राजस्थान फोरम के इस कार्यक्रम में आए, आपने अपना समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी, क्या कहूँ आपके बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आवर ग्रैटिट्यूड टू यू। एक बार जोर से तालियां हो जाए। आई थिंक पीपल लाइक जयरूप जी, दे टोटली, इन्होंने गजब का काम। थैंक यू। प्लीज बैठिए आप लोग। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, हमारी 3 मेंबर्स मौजूद हैं, पर जो 2 लेडीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, मधुबट तेलंग जी और प्रेरणा श्रीमाली जी, कि आप प्लीज़ आइए यहाँ पर और हमारी ओर से मोमेंटोस प्रदान करिए जयरूप जी को। जी, आमंत्रित करना चाहूँगी तिलक गिताई जी को भी, सर्वेश जी को एक ग्रुप पिक्चर के लिए। श्री सीमेंट्स और हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है आईटीसी राजपुताना। थैंक यू। I wanted to ask कि वो नाम क्यों बदला। मैं पूछने वाली थी, फिर मैंने पूछा नहीं। इसीलिए। Use this picture. सारी दुनिया एक तरफ और नूरू का भाई एक तरफ और मैं तो सबके साथ I speak emotionally. बोले मैं खूबसूरत ही नहीं आ रहा, बताओ सामने
थैंक यू। घर जाके क्या हाल वो एक्टर नहीं रहेगा है? जब इसके सामने का एक्टिंग करेगा। एक्टर हो ना तो नहीं, इसके सामने का एक्टिंग कर पाएगा। हाँ कपिल, अच्छी मुस्कुराहट लाइए, है ना सर? इसी मुस्कुराहट पे हो गए थे सर फिदा, इसी मुस्कुराहट पे हो गए। चलिए। नहीं आप बड़ा बुजुर्ग मान लिया एक बार। बहुत अच्छा लगा। आपका क्या परिचय है? एक ऑफिशियल। थैंक यू।